இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிக்கத்தாவே இந்த வார்த்தையை தாகமா இருக்கிற ஒவ்வொரு கூட்டி செல்லும்படி கத்தாவே இந்த மந்தையுள்ள அனை இல்லாத ஆடுகளை எனக்கு உண்டு என்ற சொன்ன கத்தாவே அந்த ஆடுகளை கத்தாவே நீர் கூட்டி செல்லும்படி ஜெபிக்கிற கத்தாவே அவர்களை வார்த்தை ரூபமாக கொண்டு கத்தாவே வார்த்தையில் அமர்ந்திருக்கிற பெருமை செய்யும் கத்தாவே கத்தாவே நீர் இதை நான் பிதாவே எனக்கு வந்திருக்கிறேன் கத்தாவே இப்ப நான் பிதாவிற்கு சென்றிருக்கிறேன் கத்தாவே இன்னும் இந்த உலகத்தை வர இருக்கிறேன் கத்தாவே வந்து கத்தாவே இந்த பிரைடே எங்களை கத்தாவே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு எடுத்து செல்ல இருக்கிறேன் கத்தாவே அதன் பிறகு கத்தாவே இந்த பூமியில் வந்து கத்தாவே நீர் உங்கள் பரிசுத்தவான்களை கூட்டி கத்தாவே இந்த பூமியில் அந்தி வருஷம் உமக்கும் டைரக்டாக யுத்தமானது அந்த அன்மகதான் யுத்தம் நடக்கும் கத்தாவே அதன் பிறகு இந்த பூமியில் அழைக்கப்படும் அதன் பிறகு கத்தாவே நீர் மனவாட்டிகள் இந்த பூமிக்கு கத்தாவே முந்திரி ஏதேன் போல் கத்தாவே ஆக்கி இந்த உலகத்தை நீர் எங்களை சுகபத்தமாக இந்த பூமியை குடியிருக்க செய்கிறேன் என்று வேதம் சொல்கிற கத்தாவே இவ்விதமான கத்தாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த தருணத்தை நான் காத்திருக்கிறோம் கத்தாவே நாங்கள் பொறுமையாக காத்திருந்த கத்தாவே உமது வருகை மட்டுமா நிலைத்திருந்த கத்தாவே நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது நான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கத்தாவே இன்னும் நம்ம பரிசுத்தப்பட நீர் எங்களை வார்த்தைகள் வளர முடியாது இருக்கிறேன் கத்தாவே வார்த்தை மூலமாக எங்களை நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் கத்தாவே எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன் அனுதன்மை எதிர பாவங்கள் குற்றம் செய்திருந்தாலும் கத்தாவே நீர் எங்களை படிக்க முடியாது இருக்கிறேன் கத்தாவே இந்த இடத்துல போது நாம பரிசுத்தப்படட்டும் தேவன் வார்த்தையை எங்கள் எங்களை பரிசுத்தப்பட்டும் கத்தாவே எங்கள் வார்த்தையை நினைத்திருக்கட்டும் கத்தாவே இந்த இடத்துல இந்த சத்திய வசனமான கத்தாவே என்ன போதிக்கிறதோ இன்றைக்கு நாங்கள் வார்த்தை தாகத்தில் இருக்கிறோம் கத்தாவே நீரை கண்மலை பிளந்த தண்ணீரை எங்கள் தருகிறீ கத்தாவே அதே போல் கத்தாவே இந்த வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு விட்டு தர முடியாது இருக்கிறேன் கத்தாவே இதோ நான் வானத்திலிருந்து இறங்குகிற ஜீவ வப்பன் சொல்லுகிறேன் கத்தாவே அந்த அப்பத்தை நீர்கள் தருகிறது இருக்கிற கத்தாவே இந்த அப்பத்தை நாங்கள் புசிக்கும் போது கத்தாவே நாங்களும் அந்த மறுரூபமாகி கத்தாவே கத்தாவில் செல்வோம் இந்த விசுவாசம் எங்களுக்கு வளர வேண்டும் கத்தாவே எங்களை அவனை இது பண்ணணும் இன்னும் கத்தாவே இந்த இடத்துல கத்தாவே அநேக ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட இருக்கிறது கத்தாவே அந்த ஜபங்களை கத்தாவே அங்கீகரித்து கத்தாவே எல்லாரும் சேவனத்தை தரப்படியாக ஜபிக்கிற கத்தாவே வந்திருக்கிற யாரும் கத்தாவே எங்கள் தாழ்த்து தருகிறோம் தேவனை எங்களுக்கு எந்த விதமான கத்தாவே குடும்பத்தில் பிரச்சனை வியாதி வர எதுவும் இருந்தாலும் கத்தாவே நீதான் நெருக்கி போட முடியாது ஜபிக்கிற கத்தாவே அனுதினமே எங்கள் வார்த்தை வரும்போது கத்தாவே எங்கள் உடல்ல எந்த வழிகள் வேதனைகள் இருந்தாலும் கத்தாவே ஆனால் அதை மாற்றி போட வல்லமை உடல் உள்ளது கத்தாவே அந்த வல்லமை புறப்பட்டு வர நீர் தெரிவு செய்ய முடியாது ஜபிக்கிற கத்தாவே பெரும்பாலும் ஸ்திரீ கத்தாவே தியானம் நாங்கள் தொட்ட போதும் அந்த ஸ்திரீ தொட்ட தொடுதல் விசேஷமாக உள்ளது கத்தாவே இதோ என்னை தொட்டது யார் எனக்கு எண்ணி கத்தாவே ஆனால் என்னிடத்துல வல்லமை புறப்பட்டு சென்றது கத்தாவே இப்பொழுது கத்தாவே நாங்கள் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறோம் கத்தாவே ஆனால் அந்த வல்லமையில புறப்பட்டு நீர் தெரிவு செய்ய முடியாது இருக்கிறேன் எங்களுக்கு வல்லமையில வளர்த்து கத்தாவே எங்கள் வார்த்தையை நிலைநிறுத்தி எங்களை முடிவு வந்து கத்தார் எங்களோடு எங்கள் வழிநடத்தி செல்லுபடியாக இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் தங்கியிருக்கட்டும் பிள்ளைகளோடு கத்தாவே வழிநடத்தி என்னென்ன தேவைகள் உண்டா பிள்ளைகள் படிப்பு ஆசீர்வதிங்கள் பிள்ளைகள் திருமண வாழ்க்கை ஆசீர்வதிங்கள் கத்தாவே இந்த குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனைகள் உண்டா எல்லாத்தையும் நீக்கி கத்தாவே வார்த்தையின் மூலமா நாங்கள் சமாதானத்தை சாமியோடு வளர வார்த்தை தெரிந்து கொள்ள நீர் பெருமை செய்யும்படியாக நீ சத்திய வசனத்தை கத்தாவே எங்களுக்கு ஊட்டு மாதிரி ஜெபிக்கிற கத்தாவே வார்த்தை வெளிப்படட்டும் கத்தாவே அவரை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டுமாறு கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன் ஆமென். आइए सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा,
आनंद जीवन है। आइए कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण उपागम डिट्रोनॉमी 16वां अध्याय उसमें 1 से 3। ஆபீப் மாதத்தை கவனித்திருந்து அதில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க கடவாய். ஆபீப் மாதத்திலே ராக்காலத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினாரே. கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவின் பலியாகிய ஆடுகளை பலியிடுவாயாக. நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளை நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் நினைக்கும்படி பஸ்கா பலியுடனே புளிப்புள்ள அப்பம் புசியாமல் சிறுமையின் அப்பமாகிய புளிப்பில்லாத அப்பங்களை 7 நாள் வரைக்கும் புசிக்க கடவாய். நீ தீவிரமாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டபடினால் இப்படி செய்ய வேண்டும். ஆமென். हिंदी में कौन पढ़ेंगे? आबीब महीना के स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पस्का का पर्व मनाना। इधर सुधा के बाजू में आ जाओ। नहीं, पहले एक जगह खाली है, सुधा के बाजू में उधर से आए। आबीब के महीने के स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए प्रस्ताव का पर्व मनाना, क्योंकि आबीब महीना में तेरा परमेश्वर यहोवा रात की तुझे मिस्र से निकल लाया। इसने जो स्थान यहोवा अपने नाम के निवास ठहरने के चुना लेगा, वो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भीड़ बकरियां और गाय बैल पसाव के करके बलि करना। उसके संग कोई कमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अगमारी रोटी जो दुख का रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से देश से उतावली करके निकाला था। इस युति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन पर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं कमीर दिखाने में भी न आए। और जो पशु तू पहले दिन के संध्या के बलि करके उसके मांस में से कुछ सवेरे तक न रहने पाए। पसाव को अपने किसी फाटकों के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलि करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने निमित्त नाम का निमित्त निवास करके लिए चुन लिया, केवल वही वर्ष के उसी समय जैसा मैं मिस्र देश से निकाला था, हल्का सूरज डूबने पर संध्याकाली को पसाव का पशु बलि करना। बस बैठ सकते हैं हम लोग। अब पहली बार आए ब्रदर, आपका शुभ नाम? शॉन निर्मलकर। हमारे बीच में भाई शॉन निर्मलकर आज पहले दिन आए हैं। उनको हम लोग तालियों के साथ में स्वागत भाई को आशीष करें। तो आइए अभी हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे साथ में है? आमीन, हालेलुया। हम लोगों ने जो कुछ भी चीज है प्रभु से अब तक हासिल किया है, वो मिलने के पहले ही धन्यवाद देके हम लोगों ने हासिल किया है। हालेलुया। चर्च नहीं था, प्रभु ने चर्च दिया करके हम लोगों ने विश्वास किया, प्रभु ने चर्च दिया। आमीन। मैं तो मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को ऐसे ही प्राप्त किया है प्रभु के पास। जब नहीं था प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं था प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो अब हम लोग एक हाथ में किताब, एक हाथ में बाइबल, ताली बजाने की तकलीफ है ना, गीत का किताब पकड़ के गीत गाने का, फिर ताली बजाने की तकलीफ होता है। इसके लिए कोशिश जारी है, एक प्रोजेक्टर लगाया जाए, सामने स्क्रीन रहेगा,
सॉन्ग सामने डिस्प्ले होगा, दोनों हाथ से आजादी के साथ में ताली बजा के हम लोग प्रभु के लिए क्या कर सकता है, गीत गा सकता है। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें दे दिया करके? हालेलुया। सब लोग दिल से धन्यवाद करेंगे प्रभु को। प्रभु आपने हमारे लिए प्रोजेक्टर दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु आपने प्रोजेक्टर दे दिए ताकि हम लोग अच्छे से ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की धन्यवाद कर सके। और भी बाइबल के कुछ गहरी बातें जो है वहां उधर पिक्चर के जरिए, ड्राइंग के जरिए क्या कर सकता है, समझा सकता है। ऐसे बहुत सारे कामों में आने वाला चीज है वो। बीच में एक ब्रदर ने कॉल किया था मुझे, बोले 40,000 का प्रोजेक्टर जो है अब 50% डिस्काउंट में 20,000 में मिल रहा है। कितना थाउजेंड में? 20,000 में मिल रहा है। बहुत अच्छा चीज है पास्टर, हो सके तो ले लो। मैं बोला लेने का तो है, लेकिन प्रभु जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 20,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, हम सब लोग मिल जाएंगे तो 20,000 कुछ भी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो आइए अब हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर से उस वचन को पढ़िएगा। आबीब महीने के अंदर उसमें तू तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना। कितना दिन तक? हालेलुया। 7 दिन तक पर्व मनाते रहो। 7 दिन, सिर्फ संडे प्रभु का नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ है? केवल संडे प्रभु का नहीं है, सारे दिन प्रभु का है। आमीन। सारा दिन प्रभु का है। प्रभु का कलाम कहता है 7 दिन तुम पर्व क्या करना, मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से ऊपर जाने के समय में मत्ती 28वां अध्याय के अंदर लास्ट वचन में कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग कैसा रहूंगा? सदैव रहूंगा। और प्रभु का बना हुआ सारा दिन अच्छा है। हमारे लिए ना तो कोई राहु है, हमारे लिए ना कोई केतु है, हमारे लिए ना कोई शुक्र है, हमारे लिए ना कोई बुध है, ना गुरु है। हालेलुया। हम जिस खुदा को मानते हैं वो सबका गुरु है। हालेलुया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ शास्त्र में कहता है 7 दिन तुम क्या करना, पर्व मनाना। और उसके बाद में कहता है जी, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम के निवास करने के चुन लेगा, हाँ, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भीड़ बकरियां। हाँ, यहाँ प्रभु एक बात करता है, देखिए क्या बोलता है, यहोवा अपना नाम क्या करने के लिए, निवास ठहराने के लिए चुन लेगा। प्रभु का नाम, पहला तो प्रभु को होने जानना जरूरी है, इसके बाद प्रभु का नाम क्या है जरूरी है, और उस नाम को प्रभु ने कहां रखा। और कहीं भी जाकर हम आराधना नहीं कर सकते, कहीं भी जाकर हम लोग क्या नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। प्रभु ने आराधना उसके बच्चों को करने के लिए प्रभु का चुना हुआ एक आराधना स्थल है। इसका मनुष्य का नहीं, प्रभु का चुना हुआ एक आराधना का क्या है, स्थल है। और उसी स्थल में जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां शास्त्र लेख में लिखा है, तुम भेड़ बकरियां और गाय बैल
फसह करके बलि करना। आज तो हम लोग गाय बैल या भेड़ बकरियां या कबूतर को बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी सलीब पर बलिदान हुए, सारे बलिदान को ये एक ही बलिदान क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। अभी तरह तरह का बलिदान करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दानियल के किताब के अनुसार जो दिन प्रतिदिन का बलिदान जो है हटाया जाएगा, हटा दिया प्रभु ने। इसके लिए मत्ती में बात करने के टाइम में प्रभु ने बोला, मैं व्यवस्था और भविष्यवाणी को नष्ट करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, उसने भविष्यवाणी को पूरा किया, उसने व्यवस्था को पूरा किया। इसके लिए आज हम लोग व्यवस्था के बंधन में नहीं है, क्योंकि व्यवस्था किसी भी मनुष्य को उद्धार नहीं कर सकता। अगर व्यवस्था उद्धार कर सकता है तो प्रभु आने का कोई मतलब ही। तो व्यवस्था एक मनुष्य को क्या नहीं कर सकता, उद्धार नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु परमेश्वर स्वयं, जिस खुदा ने व्यवस्था को दिया, वो खुदा स्वयं आकर, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को क्या नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। केवल और केवल मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर ही उस व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यह शास्त्र ले कहता है, ये लोग मिस्र देश के अंदर से बाहर आए और प्रभु कहता है कि तू जब तक जीवित रहेगा, इस बसका का, इस पर्व के साथ में तुम जो है कमीर वाला रोटी नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? कमीर वाला रोटी नहीं खाना है। तीसरा उसे पढ़ना बेटा। उसके संग कोई अखमीरी वस्तु न खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। जीवन भर तुमको क्या रहेगा, बोलता स्मरण रहेगा। यहाँ शास्त्र लेख में कहने के समय पर कहता है, कमीर का रोटी तुम नहीं खाना। कौन सा रोटी नहीं खाना? इसका मतलब कौन सा रोटी खाना चाहिए? बेकमीर का रोटी क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। आज आपको इस दुनिया के अंदर संस्थाओं में जो भी मिल रहा है वो कमीर की रोटी है। किसकी रोटी है? वो कमीर की रोटी है। लेकिन आपको और मुझे जो मिल रहा है ये रोटी कमीर का रोटी नहीं है, बेकमीर का क्या है, रोटी है। इसके अंदर कोई खट्टापन नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने उकाब के बारे में बात करने के समय में शास्त्र ले कहता है, उकाब का बच्चे लोग जो है उसका खून को क्या करेगा, चूसेगा। किसका खून को? जो मार खाएगा अवस्था में जो जान छोड़ने के लिए तड़पता रहता है जानवर, उसके पास क्या करता है, उकाब का बच्चे लोग जाकर उसका पूरा खून को क्या करता है, चूसता है। और बड़ा उकाब क्या करता है, वो फ्लेश जो है, जो ताजा मांस को क्या करता है, वो खाता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यहां भी कुछ उकाब के बच्चे लोग बैठा है, क्योंकि हमारा माँ उकाब प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा माँ उकाब कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और शास्त्र लेख के अंदर यदि हम देखते हैं, भविष्यद्वक्ताओं को भी परमेश्वर उकाब का तुलना कर क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया। जैसा उकाब को 2 पंख दिया गया है, वैसे ही हमको भी, हम उकाब लोगों को भी प्रभु ने क्या किया, 2 पंख दिया, एक नया नियम और एक जुना नियम। हालेलुया। और जुना नियम में जो कुछ भी भविष्यवाणियां हुई है, वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर रहा है, पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का शास्त्र लेख कहता है, कमीर का रोटी तुम क्या नहीं करना, नहीं खाना। एक व्यक्ति कहता है, मैं अगर प्रॉफिट का मैसेज को विश्वास करता हूं, तो फिर वो यीशु मसीह का नाम को ही विश्वास करे।
हालेलुया। उसको छोड़कर दूसरा नाम को लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय के अंदर जो नबी को प्रभु ने हमारे लिए भेजा है, उस नबी ने सीधाई से बात करता है। नमन करने के लिए एक नाम दिया गया, आराधना करने के लिए एक नाम दिया गया, और वो नाम है प्रभु यीशु का। किसका नाम है वो? प्रभु यीशु का नाम। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उसका नाम का तुल्य दूसरा कोई और नाम है ही नहीं। हालेलुया। नबी कहता है बहुत सारे नामों में वो प्रकट हुआ, बहुत सारे नामों में क्या हुआ? प्रकट हुआ, लेकिन सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम कौन सा नाम है? वो प्रभु यीशु का नाम है। प्रियो, नबी कहता है कि परमेश्वर से चुना गया आराधना का स्थान। बोलता है कि आबिद महीना जो है ये अप्रैल का महीना है। इस अप्रैल महीने में ही परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया? बाहर लेकर आया। हालेलुया। बाहर लेकर आने के बाद में प्रभु उनको चेतावनी देता है, तुम जो गुलामगिरी के अंदर जो थे ना, इसको कभी भूलना नहीं। कभी कभी क्या हो जाता मालूम है? हम लोग पूरे पूरे पाप के अंदर पड़े थे, पाप के अंदर से बाहर आ गए, प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया, प्रभु अपने पंखों के तले लेकर हमें चला रहा है। कभी कभी ऐसा फीलिंग्स को शैतान लेकर आएगा जो सामने कोई पापी दिखता है तो उसको घृणा करने जैसा, कभी नहीं करना ऐसा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों से घृणा करता है, पापी से नहीं। पापी से प्रभु ने क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। अगर पापी से प्रभु यीशु मसीह प्यार नहीं करते तो आज आप और मैं यहां आकर नहीं बैठे। आमीन। हमारे ऊपर प्रभु ने क्या किया? प्रेम किया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां नबी कहता है कि प्रभु ने उन लोगों को एक आराधना करने का क्या कर रहा है? बोलकर अंदर एक स्थान को दिया, उस स्थान में आकर तुम लोग क्या करना? आराधना करना। तो आज हम लोगों को आराधना करने के लिए कौन सा स्थान है? वो स्थान है प्रभु यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम ही प्रभु यीशु। परमेश्वर कौन है? शास्त्र में कहता है परमेश्वर पिता है। परमेश्वर कौन है? पिता है। परमेश्वर कौन है? शास्त्र में कहता है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सत्य है। इसके लिए प्रभु ने बोला सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। उस सत्य का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। शास्त्र में कहता मैं मार्ग और सत्य जीवन। हर एक प्रश्न का आंसर, चुना करार का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा हमेशा, नबी कहता है कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसके लिए जवाब किधर ना किधर होगा ना? ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको आंसर नहीं है। शास्त्र लेख के अंदर आपको जो भी प्रश्न उठेगा उसके लिए क्या है? आंसर जरूर है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें अपने को समझ में नहीं आता रहेगा। कभी कभी नबी का किताब लेकर पढ़ने के समय में आप जिस बात के ऊपर कंफ्यूजन में बैठे रहेंगे, देखा तो उसी बात के विषय में नबी क्या करता रहेगा? बात करते रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग 8-10 पेज ऐसे ही बात करके जाता है, ये ब्रदर से मिला, ये ब्रदर आ गया, इनको देखने से अच्छा लगा, ऐसा करते करते जाकर ये सब क्या पढ़ने का है, छोड़ो 10 पन्ना हटा के सीधा हम क्या करते हो, मैसेज किधर से स्टार्ट करता है करके उधर से पढ़ने के लिए देखेंगे। कभी कभी क्या होता मालूम है, वो 10 पन्ना आप छोड़ देना, उसमें बहुत सारी ऐसे बातें भी किया रहता है, उसको हम लोग मिस कर देते। कभी कभी ऐसा बात करता, मैं चल रहा था, अचानक देवदूत मेरे सामने आया, देवदूत से मेरे क्या हुआ? बातें हुई, परमेश्वर से मेरे क्या हुआ? बातें हुई। ये ब्रदर को मिला, वो ब्रदर को मिला, ऐसा बोलते 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 प्रभु के साथ में मुलाकात किया हुआ बातों को भी क्या करता है? वहां बातें करता है। कभी देखो
एक मैसेज में ऐसा बात करता है, प्रभु ये नबी जो है शिकार के लिए जाता है, शिकार के लिए गया, उसको गिलहरी मिला नहीं। गिलहरी ना मराठीमध्ये काय म्हणतात, कारुताई, कारुताई तमिळ आणि उसको शिकार के लिए मिला नहीं तो अभी बैठा है। तो उस समय में प्रभु उतरकर नबी के साथ में बात करता है, बोलता है तुझे क्या चाहिए मांग, क्यों अफसोस होकर बैठा है। बोलता है मुझे गिलहरी चाहिए। बोला कितना चाहिए, बोला मेरे को 3 चाहिए। ठीक, कौन सा स्थान में चाहिए, तो बोल उस स्थान में तेरे को क्या मिलेगा, गिलहरी आ जाएगा। वो बोलता है ऐसा ऐसा जगह में बोल रहा ना, वो जगह में क्या है, उधर गिलहरी आके खड़ा हो। ये शूट करके 2 ले लिया, तीसरे में इसको डर लग गया, वाकई में कौन मेरे साथ में बात कर रहा है, इधर प्रभु बात कर रहा है। प्रभु वापस पूछता है तू तो 3 मांगा था ना, अभी तो 2 ही मिला है, और एक तुझे गिलहरी चाहिए, बोल। वो जो स्थान बोलता है वही स्थान में क्या है, गिलहरी आता है और ये शूट करके क्या करता है, उसको लेता है। देख लेना, छोटी छोटी बातों को भी प्रभु क्या करता है, पूरा। आप लोगों के जीवन में भी अनुभव हुआ रहेगा, मैं भी बहुत बार गवाहियां दिया हूं आप लोगों के बीच में। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बातों के ऊपर में भी प्रभु क्या करता है, गौर करके हमारी जरूरतों को प्रभु क्या करता है, वो पूरा करता है। इसके लिए कभी भी नबी का किताब को पढ़ने के समय में ये मिला वो मिला करके बोल रहा है करके वो पेज को छोड़ो मत, आराम के साथ में पढ़ो, प्यार से पढ़ो। कभी कभी ऐसा इंसिडेंट बताता ना, उसके अंदर हम लोग एकदम ये हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा बताता, भाई चल रहा था जंगल में, ऐसा आकाश में से 3 धनुष है। कितना धनुष, 3। वो तीनों धनुष मिलके बाद में कितना बन गया, 1 बन गया। और उस 1 बनने के बाद उसके अंदर से आवाज आ रहा है, चुना करार का यहोवा ही, नया करार का यीशु मसीह। आप लोगों ने पढ़ा है किसी किताब में, पढ़कर देख लेना, बहुत सारा अनुभव। ये सब बातों को पढ़ने से क्या होता है मालूम है, हमारा विश्वास का लेवल क्या करता है, बढ़ता है। हमारा विश्वास जब बढ़ता है, जब नबी के साथ में प्रभु बात किया, तो हमारे साथ में भी प्रभु क्या कर सकता है, बात कर सकता है। प्रभु ने अपने लिए एक निवास स्थान को चुना, प्रभु ने अपने लिए एक सजदा करने के लिए एक स्थान को क्या कर रहा है, इधर इन लोगों के पास इंट्रोड्यूसिंग करा के दे रहा है। तो आज हम लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते, कहीं पर भी जाकर क्या नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब समझ लीजिएगा, कहीं पर भी बोलने से जहां नबी का संदेश मिलता है वहां जाकर हम लोग बैठ सकते हैं। जो फेथ के अंदर हम लोग हैं, जो फेथ के अंदर हम लोग चल रहा है, यही फेथ के अंदर अगर कोई कलीसिया चलती है, वहां जाके बैठने में कोई हरकत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मसीह के वचन के अनुसार, नबी के संदेश के अनुसार हम सब लोग कितना है, एक ही है। शास्त्र में कहता है हम लोगों को एक ही आत्मा के अंदर प्रभु लेकर आए। एक ही जगह में प्रभु का कलीसिया नहीं है, प्रभु का कलीसिया पूरा विश्व भर में है। किधर है, पूरा विश्व भर में है। देख लेना कैसा बात करता है, देखो पौलुस, पहला कुरिन्थी का 12वां अध्याय 27वां वचन को पढ़ो। நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயங்களுமாய் இருக்கிறீர்கள்। हाँ, हिंदी में इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। देख लेना, यहां शास्त्र में कहता है इसी प्रकार तुम सब लोग मसीह का कौन है, क्या विश्वास करते हैं आप, मसीह का देह है। और अलग अलग कौन है, हम लोग उसका अवयव है। इसमें हम कैसा आकर फिट होते हैं, शास्त्र में आप देखेंगे वही कुरिन्थी के रस में 12वां अध्याय के अंदर 13वां वचन को पढ़ना।
நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே நாம் தீர்க்கப்பட்டோம். क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा के द्वारा कितना देह? एक ही देह है। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। इसमें ना काला है ना गोरा है ना पीला है ना नीला, सभी रंग आके अटैच होता उधर। 7 रंग का होली दुनिया खेलती है, 7 रंग का होली बाइबल के अंदर है। 7 कलीसिया का युग, 7 मोहर, 7 गर्जना, बहुत सारे 7 उसमें इंद्रधनुष में दिखने के टाइम में कितना कलर दिखता है? फिर 7 कलर का हकदार कौन है? दुनिया वाला है कि हम लोग हैं? उस 7 कलर को पहनकर कौन खड़ा है? मसीह खड़ा है। हालेलुया। बलवान दूत के रूप में मलाक अपना रेवलेशन 10वां अध्याय में कौन खड़ा है? उधर मसीह खड़ा है। उसके पीछे वो धनुष में कितना कलर दिख रहा है? रेनबो कलर, 7 कलर्स। हालेलुया। 7 कलर। अब यहां देखना, सभी कलर के लोग मिलकर एक देह बन रहा है। कलर जात ले लो या धर्म ले लो, कुछ भी ले लो, सभी लोगों में से एक एक को क्या कर रहा है? प्रभु पकड़ कर लेकर आ रहा है। इजराइल के लोग और अन्य जाति के बीच में यही अंतर है। इजराइल को मुलाकात करने के टाइम में एक ही साथ में प्रभु क्या करता है? उनके साथ में मुलाकात करता है। लेकिन अन्य जाति के पास ऐसा नहीं है। एक एक करके क्या कर रहा है? पकड़ कर लेकर आ, एक एक करके पकड़ कर लेकर आ। अब एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होने के बाद हम लोग एक ही देह के कौन बन रहा है? हम लोग सब लोग मिलकर एक शरीर बन रहा है। ब्रदर, यहूदी का कपट को प्रभु ने तोड़ दिया। किधर? कोर्नेलियस के घर में। यहूदी लोग सोच रहा था ये पवित्र आत्मा केवल और केवल हमारे लिए है। हालेलुया। जब पतरस कोर्नेलियस के घर में प्रचार कर ही रहा था, वहां वचन को सुनने वाले सभी के ऊपर क्या आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। अब यहूदी लोग वहां स्टेटमेंट दे रहा है, अपने जैसा पवित्र आत्मा को पाया हुआ ये लोग बपतिस्मा ना लेने से कोई पानी को अलग कर सकता है क्या? हालेलुया। हालेलुया। कोई भेदभाव नहीं रखा प्रभु ने, कोई अंतर नहीं रखा। हमारा प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। हमारा प्रभु सभी से प्रेम किया, ऐसा नहीं है। यहूदी और अन्य जाति, इसका छुड़ाने का जो सिस्टम को आप बाइबल के अंदर चेक करके आएंगे, नहूम को भी छुड़ाया बोआज, सेम टाइप में रूत को भी छुड़ाया। आमीन। दोनों को छुड़ाया ना। कलवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी को भी छुड़ाया, उसी समय में आपको और मेरे को भी क्या किया? उसने छुड़ाया। पूरा विश्व में एक ही कलीसिया है। पूरा विश्व में कितना कलीसिया है? एक ही कलीसिया। और वो कलीसिया किससे खरीदा गया? प्रभु यीशु मसीहा के लहू से खरीदा गया। आमीन। आपको प्रभु ने अपने लहू से क्या किया? खरीदा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अनुवाद का मतलब जो है, व्यवस्था व्यवहार का मतलब ग्रीक भाषा से वो भाषांतर किया गया करके यहां नबी बताता है। इसका 2 अर्थ है। क्या अर्थ है? अनुवाद करके कहेंगे, इसका मतलब 2 कानून। अनुवाद का मतलब ग्रीक भाषा में, मतलब यूनानी भाषा में कहता है कि 2 प्रकार का कानून है। और वो कौन सा कानून? 2 प्रकार का कानून को प्रभु ने क्या किया? रखा। बोलता, एक है जीवन और दूसरा है मन।
एक है जीवन और दूसरा क्या है? मरण है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मैं ऑलरेडी प्रभु ने जीवन के अंदर ले चुका है। अब जीवन में प्रवेश करने वाले नहीं है, अब ऑलरेडी जीवन के अंदर क्या हो गए? प्रवेश कर चुके हैं। यूहन्ना 5:24 इस रीति से कहता है, पढ़िए। இயேசு அவர்களுக்கு ஆ. பிரதியுத்தரமாக, ஆ. நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதினால் அல்ல, ஆ. நீங்கள் அப்ப புசித்து திருப்தியானதினால். 5:24 அப்பொழுது இயேசுவும் ஆ. அவருடைய சீசரும் ஆ. அங்கே இல்லாததை ஜனங்கள் கண்டு ஆ. உடனே அந்த படகுகளில் ஏறி இயேசுவை தேடிக் கொண்டு கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார்கள். मैं யோவான் 5:24 என் வசனத்தை கேட்டு ஆ. என்னை அனுப்பினவர் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ஆ. ஜீவன் உண்டு. ஆ. அவன் ஆக்கினைக்கு தீர்ப்புப்படாமல் ஆ. மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஆ. ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று ஆ. மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है? उसका है। उस पर- मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर जो विश्वास करता है, उसके पास क्या है? बोलता अनंत जीवन उसका है। हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर मृत्यु से क्या हो गया? इतने लोग विश्वास करते हैं मृत्यु से पार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक प्रकार का मृत्यु के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा है, आत्मिक प्रकार का मृत्यु के बारे में क्या कर रहा है? ये पार कर रहा है। शारीरिक प्रकार का मृत्यु तो आना ही आना है। इसको कौन सा लिस्ट में रखा या अपने को मालूम है। इसके लिए पौलुस भी बात करने के टाइम बड़ा चालाकी से बात करता है। कैसा बात करता है? हम लोग तो रूपांतर होकर चला जाएंगे, इन केस अगर लेट हो गया तो हम किसके अंदर आ जाएंगे? पुनरुत्थान के अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। रूपांतर होकर जाने वाला झूठ भी है, पुनरुत्थान के अंदर आने वाला झूठ भी है। मरण का मतलब प्रभु से हमेशा के लिए दूर रहना। मसीह लोग तो हमेशा प्रभु के साथ में रहने वाले हैं। जिंदा जीवित रहने के टाइम वो मसीह के साथ में है, तो हमारा हम यदि निद्रा के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में भी हम प्रभु के ही साथ में रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र में कहता है, इस वचन के अनुसार हम लोग मरण को क्या कर दिए? पार कर दिए और अनंत जीवन के अंदर क्या हो गए? प्रवेश कर लिए। प्रवेश करने वाला नहीं है, ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। कैसे हम प्रवेश कर चुके हैं? शास्त्र में कहता, नोहा का जहाज के अंदर जीवन था, जहाज के बाहर क्या था? मरण था। नोहा का जहाज के अंदर क्या था? जीवन था, और जहाज के अंदर जितने लोग चले गए वो उतने लोग बच गए। तो आज मसीह के अंदर जीवन है। आप और मैं किसके अंदर है? मसीह के अंदर है। हालेलुया। हम मसीह के अंदर रहने के वजह से हम बच गए, क्योंकि मसीह में जीवन है, मसीह के बाहर जीवन नहीं है। अब देख लेना, यहां दो कानून के बारे में बात करने के टाइम में वो बोलता है, एक जो है मरण और दूसरा जो है जीवन है। और इस जीवन के अंदर जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? लिखता है, प्रभु का पीछा करके। इसका पीछा करना है। आप जितना प्रभु का पीछा करोगे, शैतान उतना ही दुनिया को आपके पीछे भगाएगा, ताकि आपका नजर दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाए, आप प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे, दुनिया की तरफ मुड़ जाए। क्या लिखता है? वो प्रभु का पीछा करके, उसका सेवा करके, उसका सेवा। अब बैंक लोग बोलेंगे, ब्रदर हम कैसे सेवा कर सकते हैं? आप सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी।
आपको एक अच्छा पत्नी के रूप में परिवार के अंदर प्रभु ने रखा है। आप अपने मिस्टर को आदर कर रहा है, आपका मिस्टर का सेवा कर रहा है। आपको जो प्रभु ने बच्चा दिया है, वो बच्चे लोगों का जो सेवा कर रहा है, वो एक प्रकार का सेवा ही है। हालेलुया। किसान अगर खेती बाड़ी कर रहा है, उसका मेहनत लगाकर वो अनाज उगवा रहा है, इसका मतलब वो एक प्रकार का क्या है? अगर वो सेवा नहीं करेगा तो हम लोग मेवा नहीं खा सकता है, कर सकता है क्या? हर फील्ड के अंदर प्रभु हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्या दिया है? काम दिया है। उस काम में हम लोग उत्तम से चलने के टाइम प्रभु का नाम का क्या होता है? महिमा होता है। हालेलुया। इसके लिए मोहरों को प्रीच करने के टाइम में कुछ लोगों ने नबी से पूछता है, हम लोग अभी प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, काम धंधा छोड़ना चाहता है। नबी बोलता नहीं, काम धंधा मत छोड़ो। अगर प्रभु आ रहा है करके बोला है, कभी भी वो आ सकता है। इसके लिए आज ही प्रभु आ रहा है समझकर उसके हिसाब से तुम क्या करो? जिंदगी जियो। इसका मतलब ये नहीं काम धंधा छोड़ दो। तुम अगर बटाटा निकालने वाला है खेती के अंदर, तो बटाटा निकालते जाओ। तुम जो कामकाज करने वाला है, उस कामकाज को तुम क्या करते रहो? करते रहो। कामकाज से वंचित मत रहो। कामकाज करना जरूरी है। तुमको अच्छा रखा प्रभु, तंदुरुस्त रखा, तो तुमको मेहनत करना जरूरी है। तुम काम धंधा छोड़कर मत बैठो। प्रभु तो आएगा जरूर, तो प्रभु हमको लेने के लिए आ रहा है। तो उस जीवन के अंदर यदि प्रवेश करना है, तो प्रभु का सेवा करना है, उसकी आराधना करना है। यदि प्रभु को हम ठुकरा देते हैं, मरण को अपना लेते हैं। दो प्रकार का कानून, व्यवस्था विवरण का मतलब कितना प्रकार का कानून है? दो प्रकार का कानून है। एक जीवन है और एक मरण है। आदम और हवा के सामने ये दोनों कानून को प्रभु ने रखा था। मरण चाहिए मरण ले लो, जीवन चाहिए जीवन ले लो। लेकिन इंसान हमेशा मरण की तरफ ही आकर्षित होता। लड़कपन से चर्च में आता, बड़े होता, बूढ़ा हो जाता, फिर भी उसका आकर्षित किधर जाता? हमेशा बुराई की तरफ ही जाता। ये बहुत बड़ा खूबी है। परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है, उसको कभी इंसान करता नहीं। और परमेश्वर जिन बातों को नहीं करने के लिए बोलता है, उन बातों को जल्दी क्या करता है? करने के लिए तुल जाता है। प्रभु ने बोला, जीवन का वृक्ष का फल जितना खाने का खाओ, लेकिन भला बुरा का फल को तुम क्या नहीं करना? नहीं खाना। क्या चीज को छूट के लिया? मरण को ही छूट के लिया। इतना ही क्यों? जब यीशु मसीह को सलीब पर मारने का समय आया, पूरा इस्राएल लोगों का मौका था, जीवन को चुनना है या मरण को चुनना है। वो लोगों ने जीवन को सलीब पर मारने के लिए बोल दिया और मौत बरनबा को क्या कर लिया? चुन लिया। इसके बारे में नबी वर्णन करने के टाइम में करता है, अपना नजर को मुड़ाकर सलीब की ओर देखो करके बोलता है, बरनबा जो है जेल के अंदर पड़ा है, उसको मौत कभी भी हो सकती है, कभी भी आर्डर आ सकता है, उसको लेके आओ, उसको काटने का है। वो मौत के भय के अंदर कैद खाने के अंदर पड़ा है। घोड़ा गाड़ी जा रही है, उसको पकड़कर लेकर आ रहा है। ये सोचा अभी मैं क्या करने वाला है? मरने वाला हूं। उसको पकड़कर खींच कर लेकर आकर बताता है, देख तू ही मरना था उस स्थान पर, लेकिन तू बच गया, तेरे स्थान को उस बंदे ने ले लिया। किसके तरफ उंगली उठाकर दिखाया? मसीह के तरफ उंगली उठाकर दिखाया। तू मरने वाला था, लेकिन तेरे स्थान पर आज कौन मर रहा है? मसीह मर रहा है। प्रियो, हम लोग मरने वाले थे, लेकिन हमारा स्थान को किसने ले लिया? मसीह ने ले लिया। हालेलुया। क्यों ले लिया? ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। ब्रदर ने प्रार्थना करने के टाइम में बोले, अब लोग जो पवित्रता के अंदर है, इतना पवित्रता काफी नहीं है, और हम लोग क्या करना चाहिए? पवित्रता के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। वाकई में हम लोग पवित्रता के अंदर और आगे क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए।
पवित्रता के ऊपर पवित्रता को पाना है। इसके ऊपर पवित्रता के ऊपर और क्या पाना है? हम लोग पवित्रता को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। तो यहाँ ये सीनै पर्वत से इनको जो है ये दिया गया व्यवस्था, और ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को जो उल्लंघन किया उसको मौत है। व्यवस्था को जो उल्लंघन किया उसको क्या है? मौत है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, विश्राम का दिन था, एक बंदा लकड़ी चुनने के लिए चला गया, उसको पकड़कर लेकर आए, प्रभु से पूछा अभी इसको क्या करना है? प्रभु ने क्या बोला? उसको क्या करो? क्षमा करके छोड़ दो करके बोला। क्या बोला? फतरवा करके खत्म करो। कभी विश्राम के दिन में लोग आराधना कर रहा है, ये किधर चला गया? लकड़ी चुनने के लिए। प्रभु ने बोला फतरवा करो, और फतरवा करके इसको क्या करो? खत्म कर दो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, व्यवस्था जो काम किया ना बाइबल के अंदर, वो एक पुलिस का काम किया। व्यवस्था कौन सा काम किया? पुलिस का काम किया है। नबी ऐसी बात करता, मरण सीनै पर्वत पर जब दिया गया, उस व्यवस्था के जरिए मरण क्या हुआ? लोगों के ऊपर आया, और वो मनुष्य को पापी करके बुलाता है। और परमेश्वर का कानून को जो कोई उल्लंघन किया वो मरा। आज हमारे ऊपर ये कानून लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग व्यवस्था के अंदर नहीं है, हम लोग किसके अंदर है? अनुग्रह के अंदर। इसके अंदर है? अनुग्रह के अंदर। इसके वजह से ये कानून हमारे ऊपर क्या नहीं होता? लागू नहीं होता। देख लेना, इस व्यवस्था कानून को जो उल्लंघन किया वो मरा। व्यवस्था में उद्धार नहीं है। व्यवस्था तुमको पकड़कर जेल में बंद कर, व्यवस्था क्या कर रहा है? तुमको पकड़कर जेल में बंद करने वाला एक पुलिस के सम्मान है, और जेल के अंदर से बाहर लेकर आने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरा एक प्रमाण को दिया। वो किधर दिया? सीनै पर्वत पर नहीं, कलवरी पर दिया। इधर दिया हमको दूसरा प्रमाण को। किधर दिया? वो कलवरी पर दिया है। वहां पाप यीशु मसीह के ऊपर गिना गया। यीशु पापी नहीं थे, यीशु मसीह पापी नहीं थे। कुरिन्थियों में लिखने के टाइम लिखता है वो पापी करके क्या किया गया? कहलाया गया, क्योंकि हमारे सब लोगों का पाप को उसके ऊपर क्या किया गया? लाद दिया गया। जैसे व्यवस्था विवरण के अनुसार तुम्हारा बलिदान करने वाला मेमना और ऐसे ही छोड़ देने वाला मेमना, इसको लेकर आने के बाद जो व्यक्ति लेके आया उसका सारा पाप को क्या करता? उस मेमने के ऊपर लाद देता। वैसे ही यहाँ कलवरी सलीब पर हम सबके पापों को प्रभु ने क्या कर दिया? अपने ऊपर लाद दिया, और वहां उसका किराया प्रभु ने क्या किया? चुकाया। आज ये 40 दिन बहुत लोग क्या करता? उपवास में रहता ना। 40 दिन मटन मछली नहीं खाएगा। 40 दिन क्या नहीं खाएगा? मटन मछली नहीं खाएगा। ऐसा कोई उपवास बाइबल के अंदर है नहीं, है क्या? हम तो संडे हो या मंडे, रोज का मंडे, हमारे लिए कोई दिन ऐसा छूटा हुआ नहीं। हालेलुया। देख लेना, ये सीनै पर्वत पर जो दिया गया उस व्यवस्था के अनुसार मरण, यहां कलवरी में उस पाप को, उस मरण को प्रभु ने क्या है? तो व्यवस्था के जरिए जिंदा नहीं है, अनुग्रह के जरिए हम लोग क्या है? जिंदा है। हेवन। तो आज हमको कोई ताबीज वगैरह बांधने की जरूरत नहीं। फ्रांसिस दादा ते काय गलेमध्ये काय रस्सी काय टाकले? हा, चैन आहे का ताबीज आहे? चैन आहे, चांगला आहे। ताबीज वगैरह काय बांधू नका बरं का।
आपल्याला काय बांधायची गरज नाही. हालेलुया. आपला देव सारा बंधनाला काय करून टाकले, तोडून टाकले कलवरी सलीब पर. हालेलुया. देख लेना, यहां शास्त्र में कहता है वहां कलवरी सलीब पर प्रभु ने क्या कर दिया, पाप को खत्म कर दिया. आप और मैं अनुग्रह के द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए. और हम लोग अनुग्रह के जरिए उद्धार पाने के लिए प्रभु दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही हमको चुना. आमीन. कभी सुना है हमको? दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही हमको प्रभु ने क्या किया है, चुना है. प्रियो, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है. तो इसको हम लोग प्रॉपर रीति से उसको प्राप्त करके उसके अनुसार वो लाइन में बराबर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए. लाइन से कोई इधर उधर भागना नहीं चाहिए. हालेलुया. लाइन के अनुसार बराबर हम चलते रहेंगे. नबी कहने के समय पर कहता है, रॉकेट उड़ाने के समय में ऊपर से नीचे गिनती काउंट होता है. ऊपर से नीचे गिनती क्या होता है, काउंट होता है. लास्ट जब शून्य बन जाता है तो रॉकेट का उड़ान क्या करता है, बढ़ता है. तो उसी रीति से आने वाले दिनों में जो अपना जो उड़ान भरने वाला है, हम सब उड़कर जाने वाले हैं, तो उसमें जाना है तो हमको भी शून्य बनना पड़ेगा. शून्य बनेंगे तब चल के उस उड़ान में हमारे लिए जगह है. यदि हम शून्य नहीं बनेंगे तो हमारे लिए उस उड़ान में क्या नहीं है, जगह नहीं है. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आदम और हवा जो है एदेन वाटिका के अंदर परमेश्वर का विधि को उल्लंघन किया. तो उसके बाद परमेश्वर ने दूसरा करार को जो है अब्राहम के साथ में किया, और कोई कंडीशन नहीं रखा अब्राहम के पास, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा कंडीशन नहीं रखा. आमीन. अब्राहम के जरिए आया हुआ राजशाही बीज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ अनकंडीशनल प्रेम किया. आमीन. अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखा परमेश्वर ने हमारे ऊपर. पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता एक पुत्र को क्या कर दिया. किसके लिए? हमें बचाने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए, हम नाश होने के लिए नहीं. यहाँ नबी कहने के समय पर कहता, यहाँ अनकंडीशनल प्रेम जताने की वजह से वो पूरा पूरा अनुग्रह है, और वही जो है जीवन का क्या है, प्रमाण पत्र है. आमीन. जीवन का प्रमाण क्या है, वही है. और इसी बात को अब्राहम और अब्राहम के बाद में आने वाला उसका बीज के साथ में क्या किया. इजराइल के सारे घराने के लोग उद्धार पाए हुए रहेंगे करके यहाँ पौलुस क्या करता है, रोमियो में वर्णन करता है. किस रीति से वर्णन करता, जो शारीरिक दिशा में यहूदी है वही यहूदी नहीं. फिर वो कौन सा यहूदी को लेकर आ रहा है उधर, आत्मिक प्रकार का यहूदी को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है. शारीरिक प्रकार का यहूदी का विश्वास क्या है, एक ही खुदा है. कितना खुदा है, उसका विश्वास कितना है, एक ही खुदा है. आत्मिक प्रकार का यहूदी का भी विश्वास कितना है, एक ही खुदा है. फर्क इतना है, वो शारीरिक प्रकार का इजराइल उस एक ही खुदा जब देह में आया उसको पहचाना नहीं, सलीब पर मार दिया. लेकिन हम आने जाती जो हमको आत्मिक प्रकार के इजराइल के रूप में प्रभु ने चुन कर लिया, हमको हमारे आंखों को खोल दिया, उनका आंखों को बंद किया. रोमियो में लिखने के टाइम पर लिखता है, उनका आंखों को परमेश्वर ने स्वयं क्या किया, बंद किया है, ताकि वो उद्धार का सुसमाचार किसके पास आए, हमारे पास आए. हालेलुया. हमको बचाने के लिए नबी वर्णन करने में करता, उसने अपना खुद का बच्चे लोगों का आंखों को क्या कर दिया, बंद कर दिया. अब ये संदेश वापस उधर जाने वाला है. ये संदेश किधर जाने वाला है, वापस जैसा आया वैसा ये संदेश वापस क्या होने वाला है, उधर जाने वाला है. लेकिन उसके पहले
जैसे यूसुफ अपने भाई लोगों से मुलाकात करने के समय में यूसुफ का बीवी बंगले में विश्राम में थी, महल में। किधर? महल में विश्राम में थी। उसी रीति से ये जो संदेश जाएगा, 3.5 साल का सेवा उधर जब शुरुआत होगा, उसके पहले दुल्हन किधर रहेगी? मध्य आकाश में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन का प्रमाण या मरण का प्रमाण, जीवन का जो चाहिए जीवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अगर मरण चाहिए तो मरण के अंदर क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। देखो, प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता। स्वर्ग में जाना जो है ना, जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, इंडिविजुअल का इच्छा है। आप लोग मेरे साथ है? स्वर्ग जाने का किसी भी व्यक्ति को तू पकड़ कर नहीं लेकर आ सकता। बेचारा लोथ बहुत कोशिश किया, कैसे भी पत्नी को साथ में लेकर चले जाएंगे करके, यहां से लेके जा सका क्या? क्योंकि उसको इच्छा नहीं था बाहर आने का। तो बाहर आना आप चाहेंगे, प्रभु निकाल देगा। छुटकारा पाना चाहेंगे, प्रभु छुड़ाएगा। कितना साल से तुम चर्च गया, या कितना साल से तुम क्रिश्चियन फैमिली में है, या कितना साल से तुम बराबर टाइप दिया, ऑफरिंग दिया, ये सब हिसाब में नहीं आता। तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है, और तुम्हारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा उद्धार किसमें है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। नबी इसके नीचे एकदम भयानक भयानक बातें करता है। एक मनुष्य उद्धार पाना है तो उसको यीशु मसीह के नाम में आना ही पड़ेगा। उसको यीशु मसीह के नाम से क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि पिता का नाम जो यीशु है वो किधर रखा है? प्रभु पुत्र के अंदर रखा है, यीशु मसीह के अंदर रखा। आज आप आराधना करने का स्थान कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। एक व्यक्ति अगर पिता के पास जाना चाहता है, यीशु के अलावा वो पिता के पास जा ही नहीं सकता। जा सकता है? पैरों से मिलना है तो यूसुफ से मिलना है। यूसुफ के मिले बिना वहां क्या नहीं कर सकता? पैरों के साथ में मिल नहीं सकता। यूसुफ जब निकल कर आता था, वहां कुरैन फूकी जाती थी, यूसुफ आ रहा है, तो सब लोग अपने अपने स्थान में घुटने में जाते थे। क्योंकि कौन आ रहा है? यूसुफ आ रहा है। हालेलुया। ऐसे शास्त्र में कहता है सब घुटना टेका जाएगा, सभी का घुटना क्या किया जाएगा? टेका जाएगा। हर एक जुबान क्या करेगा? अंगीकार करेगा। क्या है करके? यीशु ही प्रभु। क्या करके अंगीकार करेगा? हर एक जुबान यीशु ही कौन है? प्रभु है। सोचकर देख लो, मन फिराओ। जो कोई अब तक अपने कलीसिया के अंदर पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा ले लो, पापों की क्षमा को पालो, और आराधना करने का असली स्थान प्रभु यीशु मसीह का नाम है। अभी कहता है बहुत सारा नाम, लेकिन सभी नामों में श्रेष्ठ प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। इस नाम को छोड़कर यहाँ वहां दौड़ना नहीं। इसी नाम के अंदर जीवन है, इसी नाम के अंदर उद्धार है, इसी नाम के अंदर रैप्चर है, इसी नाम के अंदर चंगाई है, और इसी नाम के अंदर पापों की क्षमा। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग अपने परमेश्वर के लिए दान देंगे। आज रात को मैं और ब्रदर अनिल मराठे और वेंकटेश पीटर, हम लोग तीनों जागना सेवा के लिए जा रहे। प्रार्थना कीजिएगा आप लोग, प्रभु यीशु मसीह सत्य वचन को वहां प्रकट करके मार्ग से जो लोग भटक गए उनको फिर से मार्ग में प्रभु लेकर आने के लिए सहायता करे, मदद करे। तो आइए। मेरे जीवन का मकसद तू है,
मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मैं आगे दौड़ा चलूं,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदा मसीह, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने आपके भवन में ले आकर हमारे टूटे फूटे होठों से आप अपनी सजदा करके लिए परमेश्वर, आपके वचनों के जरिए आप हमसे बातें की करके हम विश्वास करते हैं। राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हुए सभी भाई बहनों को तो आशीष कर मेरे प्रभु। और परमेश्वर दान और दशवान से मैं दुआ करता हूँ, आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए जो दिए स्थान दशवान को आप स्वीकार कीजिए। और परमेश्वर आपके बच्चों को 100 गुना बढ़ाकर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आने के समय में सुखरूपी से आपने लेकर आए, अभी हम लोग जाने वाले हैं, सुखरूपी से आप लेकर जाना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कोई बीमार है उन्हें चंगा कर, जो कोई आज आ नहीं सके प्रभु, क्या हालात से वो लोग आ नहीं सके हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं, उनकी सारी हालातों को बदल देना परमेश्वर। आने वाले दिनों में वो लोग भी आकर आपको सजदा करने के लिए सहायता करना, मदद करना, सबको चंगा कर, सबको भला रख, तेरी नाम की महिमा की सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आखिरी गीत का हालेलुया, 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 उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोलो कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर हम आगे बढ़े। बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में।